السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں میں آپ لوگوں کی خدمت میں اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی اور اس کا ارتھ کیا ہے، اسلام کا مفہوم کیا ہے، دین اسلام کس کو کہتے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مختصر وقت میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دین اسلام کا ارتھ اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں، حیران و شزدر ہیں، مختلف قسم کے مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ صبر سکون کا جو آبگینہ ہے وہ چکناچور ہوتا جا رہا ہے۔ افراتفری کا عالم ہے، اور امن و راحت اور سکون کی جستجو اور تلاش ہر انسان کا مقصد زندگی بن چکا ہے۔ دولت، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ جن کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، وہ بھی سکون کی جستجو اور تلاش میں ہیں۔ امن اور سکون یہ ہر انسان کا مقصد بن چکا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں ہم آپ کی خدمت میں امن کے کچھ فارمولے، شانتی کے کچھ اصول اور قاعدے اور شانتی کا کچھ ضابطہ اور قانون لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم امن ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امن نہیں مل رہا ہے۔ کیسے وہ امن اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، دوستوں اور بھائیوں، اسلام یہ اپنے دامن میں، اسلام اپنے اندر، اسلام اپنے ارتھ میں، اپنے معنی میں خود امن اور سلامتی کا پیغامبر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا مطلب اور اسلام کا ارتھ کیا ہے، اسلام کا مفہوم کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم مسلمان ہیں، مسلم کہتے کس کو ہیں؟ جب ہمیں ہی خود پتہ نہیں تو آپ یہ بتائیں دنیا والے جو اسلام سے دور ہیں، یا جنہیں اسلام سے نفرت کروایا گیا، یا جنہیں اسلام کا ارتھ غلط بتا کر کے ان کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے شیطان نے بغض اور حسد اور کینے ڈالے ہیں، بھلا بتاؤ وہ کیسے آپ سے محبت کر سکتے ہیں اور کیسے وہ آپ سے قریب آ سکتے ہیں؟ ایسے سچویشن میں، ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا صحیح ارتھ اور صحیح مطلب لوگوں کی خدمت میں رکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو جاننا پڑے گا، بحیثیت مسلمان ہم کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلم کہتے کس کو ہے۔ دوستو، اسلام یہ عربی کا شبد ہے، عربی کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، جس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گردن جھکانا، اطاعت کرنا، اسے اللہ کی مرضی کے آگے خود کو آتم سمرپن کر دینا، خود سپردگی بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کے ترجمے کے لیے سبمیشن کا بھی لفظ استعمال لوگ کرتے ہیں۔ تو اسلام ایک تو یہ معنی ہے کہ خود سر کو جھکانا، اطاعت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ایشور پرماتما جس نے ہماری سرشٹی کی ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، اور یہ سنسار کا جو اکیلا تنہا اس برہمانڈ کا پیدا کرنے والا، اس کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا، اس کی آگیا کا پالن کرنا۔ اور ایک دوسرا معنی اسلام کا ہے سلم سے سلامتی، سلامتی، رحمت، امن اور شانتی ہے۔ اسی سے مسلم بنا ہے۔ مسلم کہتے ہیں سلامتی والا، امن والا، رحمت والا۔ مسلم کہتے ہیں اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، گردن جھکانے والا، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت اور اللہ کے سامنے اور اللہ کے آگیا کے سامنے خود کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو، اپنی مان کو، مریادہ کو، خود کو قربان کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کو، اپنے مرضیات کو چھوڑ کر خود کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، ایشور پرماتما کی مرضی کے تابع کر دے، اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میری مرضی
या मेरा सर मेरी मर्जी, मेरा हाथ मेरी मर्जी, मेरा दिल मेरी मर्जी, मेरा पैर मेरी मर्जी, मेरा अंग अंग मेरी मर्जी। ना ना ना, ना आपका अंग है, ना आपका सर है, ना आपका पैर है, ना आपकी आंख है। अगर ये आपके आंख और सर पैर अगर आपके काबू में है, कब्जे में है, तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी आंखों को, जिससे आप देखने का काम लेते हैं, आप अपनी आंख से ये कहिए, ऐ मेरी आंख तू मेरे कब्जे में है, तू मेरे जिस्म में है, तू इससे सुनने का काम ले ले या बोलने का काम ले ले। मैं चैलेंज करता हूं, आप इसे बुलवा के दिखा दीजिए। आप अपनी जुबान से बोलते हैं, प्लीज आप अपनी जुबान को रोकिए और कहिए, ऐ जुबान तू बोलती है, तू मेरे पास है, मेरे कब्जे में है, तो तुझे मैं आज्ञा देता हूं, तुझे मैं हुक्म देता हूं, तू इससे सूंघने का काम ले ले। तो देखें कि ये जुबान सूंघती है? हरगिज नहीं। आपके हाथ पैर आपके कब्जे में जरूर है, लेकिन ये आपके आज्ञा का पालन नहीं करते। ये अपने बनाने वाले, सृष्टिकर्ता उस परमात्मा जो ऊपर है सबसे, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है, उसी के आज्ञा का वो पालन करते हैं। उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने इस आंख को देखने का आज्ञा दिया, हुक्म दिया है, ये आंख देखती है। हाथ को चलने का, पकड़ने का आज्ञा दिया, हाथ पकड़ते हैं, पैर से चलने का काम उस मालिक ने हमको दिया है। उस मालिक के हुक्म के ये ताबे ये पैर चलते हैं, ये दिल, और हर चीज, जमीन का जर्रा जर्रा, कण कण, आसमान का, दरख्त का, पवित्र का, पृथ्वी का, आकाश का, धरती का, सब कुछ उसी के ताबे और सब कुछ उसी के आज्ञा का पालन करते हैं। तो मतलब यह है कि जो शख्स ये है इस्लाम, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, उसको मुस्लिम कहा जाता है। दोस्तों और भाइयों, इस्लाम का जो दीन इस्लाम का माना, इस्लाम के अंदर उसका एक और मफहूम आपको मैं बताता चलूं कि मुस्लिम आदमी कब बनता है, मुस्लिम कब होता है, मुस्लिम बनने के लिए उसके लिए क्या जरूरी है। मुस्लिम बनने के लिए जरूरी है कि वो इस बात का ज्ञान ले कि इस्लाम कहते किसको है, इस्लाम है क्या। तो इस्लाम का दरअसल ये डिक्शनरी में जो अर्थ हमने बताया है, सलामती का मफहूम और इताअत फरमाबरदारी, इस्लाम का एक जो अपना डिफिनेशन अपने माहौल में दीन का है, जो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ है, वो यह है कि अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की तौहीद मतलब यानी वो परमात्मा एक ही है, अकेला है, एक ईश्वरवाद को अपने दिल, अपनी जान से अपनाना, कि वो एक है, जिसके हुक्म, जिसके आज्ञा का पालन करना है और जिसकी पूजा करनी है, उसके सिवा किसी की पूजा नहीं करनी है, सब झूठ है। उसके सिवा वही एक सच्चा माबूद है, बरहक है, पूज्य के लायक है। उसके सिवा संसार में न माता, न पिता, न पृथ्वी, न आकाश, न धरती, न चंद्रमा, न सूरज, न चांद, न पीर, न फकीर, न वली, न नबी, न फरिश्ते, न जिन्न, न भूत, न प्रेत, न कोई भी बेजान या जानदार कोई भी चीज पूज्य के लायक नहीं है। किसी की इबादत, किसी की पूजा नहीं है। न किसी को पुकारना है, न किसी से फरियाद करना है, न किसी के सामने झोली फैलाना है, न किसी के सामने प्रार्थना करना है, न किसी के सामने हाथ जोड़ना है, न किसी के सामने सर झुकाना है। ये तमाम सब काम इबादत है, पूज्य है। ये सिर्फ एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक अल्लाह के लिए, अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं। तो तौहीद इलाही को दिलो जान से अपनाते हुए और अपने आप को उस परमात्मा, उस अल्लाह के हवाले कर देना, सुपुर्द कर देना, उसकी इताअत करना, उसके आज्ञा का पालन करते हुए उसका ताबे फरमाबरदार बन जाना और उसके साथ किसी को शरीक न बनाना। जी, उसके साथ किसी को साझीदार न बनाना। शरीक यानी साझीदार, पार्टनर, कि ये भी बेटा देते हैं, ये भी बेटा देते हैं, ये भी अल्लाह भी बेटा देता है, ये भी नफा नुकसान के मालिक हैं, अल्लाह भी नफा नुकसान का। ना 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 ना, संसार में कोई भी नफा नुकसान का मालिक नहीं है। संसार में कोई बेटा बेटी देने वाला नहीं है। संसार में कोई मौत और जिंदगी बख्शने वाला नहीं। संसार में कोई रोजी और फायदा शिफा देने वाला नहीं। संसार में कोई बिगड़ी को बनाने वाला नहीं। वो सिर्फ एक है, जिसे हम ईश्वर, परमात्मा या अल्लाह कहते हैं, वही है। तो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना और शिर्क से, और जो शिर्क करते हैं उनसे दूर रहना। शिर्क से भी और जो शिर्क करते हैं उनसे भी, दोनों से दूर रहना, दोनों से बराअत का इजहार करना, दूरी इख्तियार करना, उनके साथ न मिलना न जुलना। यह है इस्लाम, और यह इस्लाम, दीन इस्लाम की तारीफ, और इसके ऊपर अमल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। अजीजाने दोस्त और भाइयों, तो जब आप इस बात को ये कि मुस्लिम वही होता है जिसके गर्दन में सिर्फ एक अल्लाह की गुलामी, बस उसी की गुलामी का पट्टा होता है। क्यों हम अल्लाह की गुलामी का पट्टा क्यों अपने गले में डालते हैं, ये भी आप समझ लें। क्यों, क्या करेंगे हम? क्यों? इसलिए कि उसने हमें जमीन अता फरमाई,
हम अल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में इसलिए रख क्योंकि उसका हमारे ऊपर एहसान है, हम उसके आभारी बने। उसने हमें जीवन दान दिया, हमने स्वच्छ जीवन दी, उसने पानी दिया, उसने जमीन दिया, उसने आग दिया, उसने आसमान दिया, उसने हवाएं दी, उसने हमें सेहत दी, उसने हमें तंदुरुस्ती दी, उसने हमें आंखें दी, उसने हमें कानें दी। उस परमात्मा ने, उस ऊपर वाले ने हमें पैदा किया, हमारे पूर्वजों को पैदा किया। और वही पूर्वज, वही ईश्वर परमात्मा अपने इस पवित्र ग्रंथ में, अपने इस पवित्र कुरान में कहता है, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, अपने उस मालिक की पूजा करो जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे पूर्वजों को भी जिस मालिक ने पैदा किया है। यह या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे पूर्वजों को भी, तुमको भी जिसने पैदा किया है ताकि तुम एक साधारण और अच्छे मनुष्य बन सको, बेहतरीन इंसान बन सको। तो दोस्तों और भाइयों, अल्लाह वो है, इसीलिए हम उसकी गुलामी करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उसने जान दी, उसने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ, माता पिता दिए, उसने हमें गुरु दिए, उसने हमें उस्ताद दिए, उसने हमें मुरब्बी दिए, उसने हमें रसूल दिए, उसने हमें नबी दिए, उसने हमें जीने खाने पीने का सलीका दिया, उसने सब कुछ दिया। इसलिए हम उसके आभारी हैं, इसलिए हम उसके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। और किसी ने कुछ नहीं दिया। इन पेड़ों ने हमको क्या दिया, पौधों ने हमको क्या दिया, सूरज को हम क्यों पूजें, चंद्रमा को क्यों पूजें, आग को क्यों पूजें? आग का पैदा करने वाला भी वही मालिक है, सूरज का पैदा करने वाला भी वही मालिक है। सब कुछ जिसने हमको बनाया, उसने आग को भी बनाया, उसने आसमान को भी बनाया, उसने पृथ्वी को भी बनाया, उसने धरती को भी बनाया, उसने सब कुछ उसने बनाया। तो फिर आखिर हम क्यों इनकी पूजा करें? ये सब हमारे गुलाम हैं जी। हम एक अल्लाह के गुलाम बने, इसलिए हम अपनी अल्लाह की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में हम डालते हैं और उसके हम ताबे और फर्माबरदार बनते हैं, और उसके साथ किसी को पार्टनर भी नहीं बनाते, साझी शरीक नहीं बनाते। क्यों? इसलिए कि वो नाराज होता है। अगर हमने किसी को पार्टनर बनाया, साझीदार बनाया, तो वो नाराज होता है, वो गुस्सा होता है। उसने कहा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हमारे साथ अगर किसी ने पार्टनर बनाया, साझीदार बनाया, हमारे नबी को, रसूल को, पीर को, पैगंबर को, जमीन को, आसमान को, हमारी जितनी भी मखलूकात है, जिन चीजों को हमने पैदा किया, अगर हमारे साथ उसने शरीक बनाया, साझी बनाया, तो याद रखो, ईश्वर कहता है हम सारे पाप धुल देंगे, सारे पाप माफ कर देंगे, सारे गुनाह तुम्हारे मिटा देंगे। लेकिन याद रखो, हम अपने साथ किसी की पार्टनरशिप को करने वाले को हम माफ नहीं करेंगे। उसका ठिकाना जहन्नम है, नरक में जाएगा वो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा वजीर हो, बादशाह हो, हाकिम हो, कोई भी हो, यहां तक कि पीर, पैगंबर, रसूल भी हो। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी मेरे साथ शरीक किया, यानी अल्लाह कहता है अगर आपने भी मेरे साथ किसी को साझीदार, पार्टनर, शरीक बनाया, तो फिर याद रखो आपको भी जहन्नम में जाना पड़ेगा, आपके भी आमाल जाया और बर्बाद हो जाएंगे। तो अजीजान गिरामी, मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसलिए हमको चाहिए कि हम उसी एक अल्लाह की ताबेदारी करें, फरमाबरदारी करें, और ये बात अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अल्लाह जो है ये अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह के रहीम भी है, रहमान भी है, उसके नाम कहार भी है, जब्बार भी है। इस सिफात का हामिल अल्लाह के सिवा कोई और नहीं हो सकता। जबर और कहर, समझ रहे हैं, ये मोमिन के सिफात में कैसे हो सकते हैं? इसलिए मोमिन जालिम भी नहीं होता, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। जब अल्लाह जुल्म नहीं करता तो किसी के ऊपर मुसलमान जालिम नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान मानवता का दुश्मन नहीं हो सकता, मुसलमान इंसानियत को हिलाक और बर्बाद नहीं कर सकता, मुसलमान खूनी नहीं हो सकता, मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, मुसलमान फसादी नहीं हो सकता, मुसलमान तखरीबकार नहीं हो सकता, मुसलमान इरहाबी दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं हो सकता। ये बात याद रखा जाए। क्यों? ये सारी बातें दीन इस्लाम के खिलाफ हैं। दीन इस्लाम इन तमाम बातों के खिलाफ है। हरगिज़ दीन इस्लाम ऐसा, बल्कि दीन इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, सलामती का पैगाम देता है। चुनांचे जब एक दूसरे से एक मुसलमान मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ऐ लोग तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम्हारे ऊपर अमन हो, तुम्हारे ऊपर शांति हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुछ दिनों पहले आपने प्रधानमंत्री के भाषण में भी सुना होगा। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपस में सलाम को राइज करो। सलाम मतलब अमन फैलाओ, सलामती हो, तुम्हारे ऊपर शांति हो, राइज करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तारिफ मन लम तारिफ, जिसको जानते हो उसे भी
और जिसे पहचानो ना पहचानो सबको सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारगी बढ़ती है। और ये जो है भाईचारा को फैलाने का एक सबसे बेहतरीन जरिया है। सलाम के लिए जो अल्फाज मुकर्रर किए गए हैं इस्लाम में, आपको पता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब क्या है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की बरकतें हो। वह मिलते ही इस ख्वाहिश का इजहार होता है, दुआ करते हैं। एक शख्स एक इंसान से मिलता है, एक मुसलमान दूसरे से मिलता है, तो यही कहता है तुम्हारे अमन में रहो, बरकत हो, तुम्हारे ऊपर रहमतें हो, तुम मेरी जानिब से अमन सलामती में हो। अब तुम हमारे पास आए, हम मिल रहे, अमन से रहो, सलामती से रहो, कोई और तुम्हारा बुरा चाहे हरगिज़ हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सलाम के जवाब में दूसरा क्या कहता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो, अब तुम हमसे मिले हो, अब तुम्हारे ऊपर कोई जबर नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, कोई खैर नहीं होगा। अजीजान गिरामी, जाहिर है कि सलामती सिर्फ उसी एक शख्स के सलामत रहने से नहीं आ सकती, बल्कि उन सबों के साथ भी लाजिम होनी चाहिए जिनकी बेसुकूनी आदमी के लिए बेचैनी का सबब बन जाए। सलाम के अल्फाज इस्लामी माशरे के अंदर सबसे बड़ी पहचान है, और इनसे उमूमन वो लोग भी वाकिफ होते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों से कुछ खास वाकफियत नहीं रखते। गोया सलामती और नेक ख्वाहिशात के अल्फाज ही से हमारी पहचान बनती है, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा परिचय सलाम से ही होता है। मगर अफसोस आज हमारी पहचान सलामती से नहीं बन रही है, इसके बरक्स बनती जा रही है। दुश्मन हमारे खिलाफ प्रोपगेंडे कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे किरदार को, हमारे कैरेक्टर्स को हाईलाइट करके मीडिया दुनिया को ये बता रही है, देखो ये दहशतगर्द हैं, देखो ये टेररिस्ट हैं, देखो ये बुरे लोग हैं, देखो ये गंदे लोग हैं, देखो ये सब्जियां में थूकते हैं, देखो ये लोगों के साथ बुरा कहते हैं, लोगों देखो, दुनिया भर के इल्जामात हैं। बदअमनी से हम पहचाने जा रहे हैं, बुराई से पहचाने जा रहे हैं। हम सलामती के बजाय तशद्दुद और तखरीब कारी से, फित्रों फसाद से पहचाने जा रहे हैं। आज हमारी पहचान ये बनती जा रही है। क्या हम ऐसे मुसलमान हैं? हरगिज नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, हरगिज नहीं बनना। इस्लाम को बदनाम करने वाले कभी खुश नहीं रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमारे नबी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदी व लिसानी, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से लोग महफूज रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी, इस फरमान की रोशनी में देखें तो आज हम हैं। कितने लोग मुसलमान हैं अगर इस उसूल पर कि जिनकी जुबान, जिनके हाथ और जिनकी जुबान और जिनके हाथ से लोग महफूज हैं, जो मुसलमान कहे जाने के हकदार हैं, अगर इस हदीस को हम लागू करें, कितने लोग हैं? हमारी अजियतों से न हम महफूज हैं, न हमारी बीवियां महफूज हैं, न हमारे बच्चे महफूज हैं, न हमारे पड़ोसी महफूज हैं, न हमारी अजियतों से और तकलीफों से, जुबानों के तानो तशनी से, गाली गलूज से, बुराइयों से न उलमा महफूज हैं, न शेखुल हदीस, न अल्लामतुद दहर, और कोई मदारिस, कोई जिम्मेदार, कोई भी कौन महफूज है? एक दूसरे के रिश्तेदार भी महफूज नहीं, पड़ोसी भी महफूज नहीं, खुद आलिम मौलवी भी एक दूसरे से महफूज नहीं है। हम मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान हैं? कौन से मुसलमान हैं? आज हम अपनी छवि दुनिया के सामने क्या पेश कर रहे हैं? कौन सा कैरेक्टर पेश कर रहे हैं? आप क्या दुनिया को उल्लू समझ रहे हैं? दुनिया के सब देख रही है, वाच कर रही है, पूरी दुनिया हमारे चलने फिरने को, उठने बैठने को वाच कर रही है। अजीजान गिरामी, जब हमारा जिस्म हमसे सलामती पा जाए तो जान लें कि हमने उसका हक अदा कर दिया, और जब लोग हमसे महफूज हो जाएं तो ये समझ लें कि हमने लोगों का भी हक अदा कर दिया है। यानी खुद को सलामत रखना अपने जिस्म का हक है, और यह भी जरूरी है कि आदमी दूसरों की भी भलाई चाहे। यह दूसरों का हक है कि वो हमारी अज़ियत और हमारी तकलीफ से महफूज रहे। अगर हम किसी को खुशियां नहीं दे सकते तो याद रखिए, किसी को गम देने का भी हक हमें हरगिज नहीं है। समाज की खैरखाही और अल्लाह के बंदों की भलाई, यही बातें इस्लाम की जान हैं, और कुरान हदीस की तालीमात का एक हिस्सा भी। पड़ोसियों के लिए अमन और सलामती की ख्वाहिश करना, यह इस्लाम हमको सिखाता है। कुरान करीम में पड़ोसियों के हुकूक के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास ताकीद फरमाई। सहाबे कराम तो ये भी कहते हैं कि ऐसा एक दफा तो आपने इतनी ताकीद फरमाई कि हम खौफजदा हो गए कहीं हमारे वरासतों में उनके हिस्से न लगा दिए जाएं। अल्लाह अकबर। ये पड़ोसी कोई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, जरदश्ती भी हो सकता है, आर्य समाजी भी हो सकता है, सनातन धर्म किसी भी धर्म का मानने वाला हो सकता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी हो सकता है। पड़ोसी आम है, पड़ोसी आम है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, पात का हो, किसी भी नस्ल का, धर्म का हो। अगर वो मुसलमान का पड़ोसी है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी इज्जत करें, हम उसके साथ उठे बैठे, हम प्रेम मोहब्बत से उसके अपने अखलाक को पेश करें, उसको हदिया, गिफ्ट, तोहफे सब कुछ दें। उसका हम ये हमेशा सोचें कहीं वो हमारी वजह से परेशान तो नहीं।
हज़रत इमाम हसन बसरी। और कोई भी भेदभाव न रखा जाए, ना मजहबी भेदभाव, न रंग का, न नस्ल का, न जुबान का। बहैसियत इंसान हम सब इंसान हैं और हर इंसान भाई या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। अल्लाह ताला ने क्या कहा कलाम ग्रंथ, इस पवित्र ग्रंथ में हमारे और आपके अल्लाह, संसार के अल्लाह ने, जी जिस अल्लाह को आज बहुत सारे जाहिल बेवकूफ गालियां देते हैं, नहीं समझते कि वो अरहमुर राहिमीन है, उसने उसको पैदा किया है। पानी का एक कतरा था, मां के पेट में गया, किसने बनाया? उसके माता पिता ने बनाया? नहीं, ऊपर वाले ने बनाया, जिसने उसे जमीन दी, जिसने उसको आसमान दिया। लेकिन ये बुद्धू है, अहमक है, गाली देता है, कहता तुम्हारा अल्लाह, अरे हमारा अल्लाह है तो तुम्हारा भी अल्लाह है। ऐसा ना करो वरना अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो उसने इसमें कहा ये ऐ संसार के, या अय्युहन्नास, ऐ संसार के वासियों, हमने तुम्हें एक माता पिता से बनाया है, एक मां एक बाप से बनाया है। जी हाँ, इन्ना खलक़ना मिन ज़करिन व उन्सा, कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर है। हाँ जी, कोई जात पात नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, सब बराबर है, सब बराबर है बहैसियत इंसान। और अल्लाह के यहां सबसे बड़ा वही है जो उस परमात्मा को जानने वाला है, उसके आज्ञा का पालन करने वाला, उसके सामने सर झुकाने वाला, उसी से प्रार्थना करने वाला। किसी देवी देवता मूर्ति और किसी पेड़ पौधे की पूजा पाठ नहीं करता, वो किसी कब्र दरगाह चद्दा अलम चबूतरा नबी रसूल की पूजा पाठ नहीं करता, किसी से फरियाद नहीं करने वाला, सिर्फ एक अल्लाह, वही सबसे बड़ा है। अल्लाह इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो हलाल खाए, हराम से बचे, शिर्क ना करे, बिदअत ना करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक और पार्टनर न बताए। अजीजाने दोस्तों और भाइयों, यह है इस्लाम, यह है इस्लाम और यह है मुसलमान। कोई भी हो, अमन और अमान के पैगंबर, हमारे असलाफ जो थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े महान जो गुजरे हैं, उनके कैरेक्टर्स से, उनके सलूक से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं दुनिया भर में। हंसते खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर आप देखिए, पड़ोसी नहीं, एक यहूदी था, यहूदी जिसके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया कि अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू वल यहूद, कि मोमिनों तुम्हारे सबसे पक्के दुश्मन यहूद हैं। उसके बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कैरेक्टर क्या था उनके साथ? एक बच्चा यहूदी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता था, बैठता था, सुनता था, चला जाता था, ऐसे आता रहा। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा नजर नहीं आया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा? किसी ने कहा वो बीमार है। कहा चलो हम सब चलते हैं उसकी इयादत के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए। सुनो, सैयदुल अरब है, पूरे कायनात के सरदार हैं, रसूल हैं, नबी इतने बड़े हैं, लेकिन अपने साथियों को लेकर उस बच्चे के घर पे जाते हैं, उसके सरहाने बैठते हैं, दुआ करते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और उसके ऊपर इस्लाम कहते हैं, अस्लिम, मुसलमान हो जाओ, अस्लिम, अमन में दाखिल हो जाओ। यहूदी के बच्चे को उसका बाप भी बैठा है, बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा अते अबुल कासिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं उनकी बात को मान लो। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये अखलाक था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर नफरत करते, अदावत करते, न जाते, न मिलते तो क्या होता? आज जरा सी बातों पर हम लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, फेसबुक के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ लिखते हैं। अरे वो जो मरीज है वो चिल्लाएगा, कुल्लु इनाइन यतरशु बिमफी, बर्तन में जो होता वही टपकता है। बर्तन में आबे जमजम होगा, पवित्र जल होगा तो पवित्र जल टपकेगा, गंदगी होगी तो गंदगी। तो जो बोलता है वो अपने हसब और नसब का पता बताता है, अपने खानदान का पता बताता है। जी जनाब, पेड़ जो है ना, पेड़ खुद अपना नसब नहीं बताते, बल्कि उनके फल अपना, उनके फूल अपना पेड़ का नसब और हसब बताते हैं। तो जो लोग गालियां बकते हैं, जो लोग बुरा कहते हैं, वो उनको कहने दो, वो मरीज हैं, उसका बुरा मत मानो। हम ये सोचें कि हम अपने उन भाइयों को कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे हम उनके लिए रहमत बन सकते हैं, कैसे ये बेहतरीन वो गिफ्ट जो ईश्वर ने उनको दिया है और हमारे हवाले से उन तक पहुंचना है, कैसे हम उन तक डिलीवर कर सकते हैं, कैसे हम पहुंचा सकते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह, वाकया बहुत है। इमाम हसन बसरी के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सुना कि उसका पड़ोसी इतना बड़ा घर बड़े सस्ते दामों में बेच रहा है। तो हंसते इमाम हसन बसरी ने पूछा कि बड़े सस्ते दामों में बेच रहे हो, सॉरी ये घर बड़े महंगे दामों में बेच रहा है। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये इतना सस्ता घर है, तुम्हें इतने महंगे में क्यों बेच रहे हो? कहने लगे कि घर की कीमत तो 100 दीनार है, लेकिन पड़ोसी की कीमत 1000 दीनार है। इमाम हसन बसरी उसके पड़ोसी थे यहूदी के। चुनाचे उन्होंने सुना और यहूदी से मिले, कहने लगे क्या बात है भाई, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जरूरत है पैसे की। तो उन्होंने कहा कि क्यों, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? चूंकि इमाम हसन बसरी सुन चुके थे कि वो कह रहा पड़ोसी मेरा बड़ा कीमती है, इसलिए उसकी कीमत मैंने 1000 लगाई हुई है और अपने घर की कीमत मैंने 100 दीनार लगाई हुई है।
हज़रत इमाम हसन बसरी ने कहा, भाई अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें 100 दीनार दे देता हूं, लेकिन तुम इतने अच्छे पड़ोसी हमें छोड़ के मत जाओ। इमाम हसन बसरी ने उसको दिया। यह अखलाक था इमाम हसन बसरी, जो किबार ताबईन, बड़े ताबईन में से, तो उनका कैरेक्टर था ये। इस कैरेक्टर से मुतासिर हुआ वो यहूदी भी, और जनाब अली उनकी कीमत की बात करें तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रहीम है। इस तरह हमको बनना चाहिए, हम मुसलमान बने इस तरह से। अल्लाह रहीम है, रहमत चाहता है। इस्लाम रहमत का नाम है, इस्लाम दीन रहमत है, अमन व अमान का दीन है ये। और अपने मानने वालों के सामने जिस अल्लाह का तस्वुर इस्लाम ने पेश किया है वो रहमान है, रहीम है। उसका आगाज ही अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमान अर रहीम से हो रहा है कि वो माबूद है जो रहमान है, जो रहीम है। अब उसका वो गफ्फार है, बख्शने वाला है, वो सित्तीर है, वो गैबों को छुपाने वाला है, रहमान है, रऊफ है, रहीम है। इन नामों के सिफात के लिहाज से एहसास होता है कि वो परवरदिगार, वो मालिक, वो मौला, वो ऊपर वाला परमात्मा मेहरबानी करने वाला है, वो करम करने वाला है, वो बख्शिश करने वाला है, वो बदअमनी और तशद्दुद, बेरहमी और जुल्म को कभी भी पसंद नहीं करता। यही सबब है कि जिन लोगों ने इस्लाम को सही तरीके से समझा है, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को और उनके आज्ञा को सही तरीके से अपनी जिंदगी में उतारा है, जाना है, उन्होंने इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों से भी मोहब्बत की है, जानवरों के ऊपर भी रहमो करम का मामला किया है। आज लोग इस्लाम की आधी अधूरी तालीम सीख कर अब लड़ते हैं, भिड़ते हैं और इंसानों को कत्ल, इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर तो बड़ी दूर की बात रही। अल्लाह की जमीन को फित्रों फसाद से, कि बाज लोग जो है क्या कहते हैं, फित्रों फसाद पैदा करते हैं, हालांकि ये हराम है। अल्लाह ने तो ऐसे लोगों को जो रहम करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जानवर ही क्यों ना हो, उसके भी अल्लाह उनके पापों को, उनके गुनाहों को धुल देता है। सही बुखारी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवाइफ का जिस्म फरोश कर, जिस्म बेचने वाली औरत का वाकया जिक्र किया कि वो कहीं सहरा में जा रही थी, प्यास लगी उसको, तो उसने अपने जूते उतार करके पानी पिए, देखा कि बगल में एक कुत्ता भी मर रहा है प्यास से, उसने उसके ऊपर रहमत करी और उसने उसी जुराबों से पानी भर करके उस कुत्ते को पिलाया। कुत्ता जिंदा होकर, यानी पानी पी करके वो भागा। तो अल्लाह ताला को ये उस तवाइफ की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, उसे जन्नत दे दी। तो अगर आप जन्नत चाहते हैं तो वो तो जानवर है, आज इंसान है। इंसान किसी भी धर्म, इंसान मानवता, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी दीन, किसी भी जात, किसी की बात, इस्लाम के अंदर तो ये सब है ही नहीं। जी जनाब अली, सबके साथ रहमत का काम करें, सबके साथ प्रेम का। आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। देखिए किस तरह जानवरों से भी बदतर सलूक इंसानों के साथ हमारे देशों के अंदर किया, खासतौर से भारत के अंदर। देखिए कैसे डंडों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मोटरसाइकिलें तोड़ी जा रही हैं, नौजवानों के हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे हैं, कैसे जुल्म हो रहा है, किस तरह से। आप देखिए ये जुल्म और ज्यादतियों का बाजार गर्म है। थोड़ा सा हुकूमत ने टाइट किया हुआ कि भाई कोरोना की वजह से घरों से मतलब, अब कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो बिना किसी सबब ठोकना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब में देखिए, यहां भी लोग निकलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अदब है, एहतराम है इंसानियत का। तो आप मुसलमान हैं तो आप एक दूसरे से एहतराम करें, इज्जत करें। इस्लाम लोगों को इज्जत सिखाता है। न निकलें, क्या जरूरत है कि उसके तौर और तरीके अपनाएं कानूनी तौर पर। बहरहाल अल्लाह हमें इस कोरोना जैसी भयानक महामारी से बचाए और हमारी पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह अमन और शांति नसीब फरमाए। तो बहरहाल आज बहुत सारे लोग फित्न और फसाद के ऊपर एनर्जी सर्व करते हैं। काश उतनी एनर्जी, उतनी ताकत, उतनी कुव्वत अमन और शांति के फैलाने में, खुद इस्लाम के दस्तूर को, कानून को लोगों तक पहुंचाने में अगर सर्व करते तो लोग रवादार बनते, लोग मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला बनते। दुनिया को इस्लाम की हकीकी तालीम से रूबरू कराया अगर आज जाता तो आज इस्लाम की दुनिया गिरविता हो जाती। हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोगों को इस्लाम की तालीम बताएं, इस्लाम की बेहतरीन खूबियों को लोगों के सामने रखें। इस्लाम जिस रहमो करम की तालीम देता है उसकी मैं कई मिसालें पेश करता हूँ। खुद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी एक किताब में अपने वालिद शाह अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा के हवाले से लिखा है कि एक दफा अकबराबाद में बारिश हुई और हवाओं के मौसम में सवार होकर वो जा रहे थे। देखा कि रास्ते में एक जगह कुत्ते का एक पिल्ला छोटा सा दलदल के अंदर फंसा हुआ है, डूब रहा है। ये देखकर उनको शाह अब्दुल रहीम साहब को तकलीफ हुई और दर्द हुआ, तो उनका दिल भर आया। पिल्ले छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, कितना प्यारा होता है कुत्ते का। चुनांचे खादिम से कहा जाओ उस पिल्ले को बांधो, लेकिन खादिम को नफरत सी हुई, वो नहीं गया। तो खुद आप घोड़े से उतरे और उतरने के बाद कपड़ा चढ़ाया और पानी के अंदर उतर गए। और जब खादिम ने देखा कि हजरत खुद उठ गए तो दौड़ा दौड़ा खुद गया। बहरहाल
उसने कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाला, उन्होंने गर्म पानी मंगाया और उसके धुल करके उसको बाजू में गांव के वहीं कहीं सालन रोटी थी, उसको कुत्ते के पिल्ले को खिलाया। और नानबाई था, और नानबाई से कहा कि भाई अगर यहाँ गांव वाले इसको कबूल करते हैं रखना पालना तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे अपने साथ लूं, क्योंकि इस गांव का कुत्ता है, मैं कैसे ले जा सकता हूं। तो नानबाई ने कहा नहीं हजरत, आप छोड़ दें, आप जो है रहने दें, हम ही इसकी देख रेख करेंगे। ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, ये है कुत्ते के साथ भी। और आज हम इंसानों के साथ क्या करें? इंसान खुद इंसान की इज्जत व आबरू को नहीं समझ रहा है, ऐसे में वो किसी जानवर की इज्जत व आबरू क्या समझेगा? तो ऐ लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, हमारा दीन, हमारा इस्लाम दीन रहमत है। ये दुनिया को अमन और शांति सिखाता है। जो लोग इस अमन को भंग कर रहे हैं, जो लोग अपने किरदार से, और उन्हें सोचना चाहिए कि वो कैसे मुसलमान, अगर वो मुसलमान है तो याद रखें वो मुसलमान नहीं, वो इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम को रुसवा करने वाले, इस्लाम को जलील करने वाले हैं। और इस्लाम को जलील करने वाला कभी भी बाइज्जत नहीं हो सकता। इस्लाम रहमदिली का नाम है, रवादारी का नाम है, टॉलरेंस का नाम है, एक दूसरे से मोहब्बत और गले मिलने का नाम है। यही तालीम हमें रमजान सिखाता है। रमजान के इस माह वालों हम भूखे हैं तो हमें भूखों की कदर होनी चाहिए। अपने दौलतों के थैलियां खोल दो, दहाने खोल दो। गरीबों मिस्कीनात, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बैठे हैं। ऐ लोगों की मदद करो, हेल्प करो। ये ना देखो ये किस दीन और किस धर्म का है, अपने देश को आगे बढ़ाओ। किसी भी देश और किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, मेरी यह आवाज पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, किसी एक धर्म एक खास मजहब के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। क्यों? हमें इस्लाम की तालीम यही है जो पूरी दुनिया के लिए है। अल्लाह आखिर में अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने वाला बनाए, इस्लाम के माने और मतलब को समझने वाला बनाए। इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में इस्लाम की खूबियों के ताल्लुक से और अच्छाइयों के ताल्लुक से मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात लेकर हाजिर हो रहा हूँ। वक्त इजाजत नहीं देता, सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। मैं रुखसत चाहते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे रोजे को, हमारे क़याम को, सियाम को कबूल फरमाए और पूरी दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।